Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. 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 As in a previous class, we have completed civics lesson number 3, how the state government works, and whatever doubts were there, that has been clarified. I hope now no doubt, no page to be explained is remaining. Everything is clear. Okay, fine. Yes, ma'am. Okay, fine. So now we'll continue our syllabus with lesson number 4 of history, that is the Mughal Empire. Now in this history, the previous lesson we have read about history was of Delhi Sultans. Have you remember the Yes, Delhi ma'am. Sultans, in which we have read about the different dynasties of Turkish rulers, different dynasties of Turkish rulers, the Muslim rule we have understood about, Hana, in which we have read about Kutubuddin Aibak, Razia Sultan, then Alauddin Khilji, then Muhammad Tughlaq. Each and everything we have, everybody we have read about their dynasties, their administration and all. And after that, Delhi Sultans, that is the rule of the sultans. Sultan is an Arabic word. The Muslim rulers used to rule that time. Say to the king. Ruler, that means the king. Clear? At that time, the Muslim rulers were used to sit on the throne of Delhi, and they used to rule the king. They used to rule India here. Then come after Delhi Sultans. After Excuse the yes, Lakshita. मैम जैसे कि मैम हमने चैप्टर 3 में मैम तुगलक डायनेस्टी एंड सारी मुस्लिम्स की डायनेस्टी देखी तो मैम इनकी डायनेस्टी मैम इनके जो सरनेम होते थे उसी के नाम पे होती थी. यस डायनेस्टी लोग अपने उनके अंडर में फिर वो जो भी उनके सन या जो फॉरेनर्स होते थे वो बैठते थे तो वो अपने नाम चलाते थे बट दे वर अंडर वन हेडिंग दैट इज द मेन. आपके भी हम लोगों के भी देखते होंगे हमारे जो नाम है बच्चों के नाम हम लोग पापा के नाम पे पर पापा का नाम के साथ साथ दादाजी का भी नाम साथ में लगता है. जैसे आप ले बताइए कोई एग्जांपल बताइए. आप एग्जांपल बताइए. जैसे कोई आप नाम ले लीजिए किसी का नाम. जैसे आर्यन भाटी करके ले लीजिए तो भाटी आपके पापा का नाम तो नहीं होगा. भाटी आपके किसके नाम होगा? वो फादर सरनेम है ना. सरनेम है आपके फादर्स का नाम. फोर फादर्स ग्रैंड पेरेंट्स ग्रेट ग्रेट पेरेंट्स का नाम चलता आ रहा है ऐसे समझ में डायनेस्टी. ओके. Now coming to the Mughal. Now next after the Delhi Sultans, the rule of the Sultans, the rule of Mughal Empire start. Ruling as large territory. Keep your mics off. Ruling as larger territory as Indian subcontinent with such a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. Now in the Middle Ages, this is a middle history only. We are reading about medieval period only. Yes, ma'am. Ancient history we have already read about in the 6th standard, 7th standard we are about the medieval history. So in the medieval history, to have a rule, to have a control over such a big continent, that is we can call it Indian subcontinent, was not an easy task for the rulers. It was not an easy task to have the control over such a big subcontinent like India. Clear? And it was a very difficult for the rulers to accomplish means to complete successfully in the Middle Ages, to complete or to have a control over the large subcontinent. It was very difficult for the rulers of the Middle Ages. Clear? These lines, the beginning introduction. Now quite in contrast to their procedures,
to their procedures means quite at different, we can say, to their procedures. Who are the procedures? The forerunners. Who are the procedures? The forerunners. Who were ruling before? Who were ruling before? जो पहले रूल कर रहे थे. Are you following? Yes, So quite ma'am. in contrast to their procedures, the Mughal created an empire and accomplished with what had hitherto seemed possible for only short period of time. Now previously, which was considered as a difficult task to rule on the such a great subcontinent, Indian subcontinent, where diversity of people was there. Diversity of people means different groups of people used to live with different culture, different caste, different taboos, different customs and all. At that time, the previously in the Middle Ages, it was difficult for the rulers to rule and have a control over Indian subcontinent, but the procedures were not having. But in contrast means in comparison to that, the empire and accomplished with that hetero. What does the word hetero means? Previously or earlier, which was earlier seemed possible for only short period of time. पहले जो भी कंट्रोल किया जाता था वो सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए ही कंट्रोल किया जाता था. बाद में वापस से क्या गवर्नर्स और जो नोबल्स होते थे या लोकल लीडर्स होते थे वो वापस से अपने आप को इंडिपेंडेंट रूल के रूप में इंडिपेंडेंट हो जाते थे और वो पर्टिकुलर एक डायनेस्टी के अंडर में नहीं आते थे. सो क्वाइट इन कंट्रास्ट. यस यस Ma'am, please can you repeat the meaning of predecessors? प्रोसीजर्स मींस forerunners. Okay. Forerunners. The Mughals created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible for only short period of time. Now अब Mughals ने ये empire create किया. Mughals ने empire create करा, control लिया अपने हाथ में, जो कि एक तरीके से it was very difficult, which seemed very difficult in the early years. Clear? In the middle ages, जो कि बहुत impossible लग रहा था कंट्रोल, या शॉर्ट पीरियड के लिए ही पॉसिबल था कंट्रोल में लाना, वो अब मुगल ने एक एम्पायर के रूप में अपने अंडर में ले लिया. Now from the later half of the 16th century, they expanded their kingdom. अब now Mughals started expanding their kingdom. अब मुगल्स के हाथ में आ गया एम्पायर किंगडम. अब उन्होंने अपना किंगडम एक्सपेंड करना, स्प्रेड करना शुरू कर दिया. फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा दिल्ली से उन्होंने एक्सप्रेड करना शुरू कर दिया. Until in the 17th century they controlled nearly all the subcontinent. और धीरे धीरे 17th century तक उन्होंने क्या करा, पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे अपना कंट्रोल शुरू कर दिया, कंट्रोल स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया. I hope the paragraphs are clear. Previously, which was difficult, now under the Mughal rulers, now it became possible to have the control over the subcontinent. Now they impose structures of administration. They impose structures of administration and ideas of governance. Ideas of governance means how to rule or administer. अब दे इम्पोज स्ट्रक्चर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. वो नए नए तरीके, एडमिनिस्ट्रेशन के नए नए तरीके ढूंढने लगे, so that they have proper control over the subcontinent. They have started using new ideas of governing. Governance means new ideas of governing that outlasted their rule, जिससे कि नए नए एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके, नए नए गवर्निंग के रूल्स एंड रेगुलेशन से उनका जो रूल है, मुगल रूल था, वो आउटलास्टेड फॉर लॉन्गर पीरियड. क्लियर? ज्यादा समय तक मुगल रूल स्टैब्लिश रह सका. लीविंग अ पॉलिटिकल लीगेसी that succeeding rulers of subcontinent could not ignore. Leaving a political legacy. Legacy means inheritance. एक तरीके से उन्होंने इतने पावरफुल तरीके से रूल स्टैब्लिश किया और धीरे धीरे अपना किंगडम स्प्रेड किया और इतने प्रॉपर वे से अपना
एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप किया, एंड द गवर्नेंस, द रूल ऑफ गवर्निंग was so nicely that their rule outlasted for years, and they also left a political legacy, political inheritance for the succeeding rulers. Political inheritance means उन्होंने अपने जो उनके सन, जो राजकुमार, जो रूलर्स उनके बाद गद्दी पे बैठे, हाँ हाँ, जो उनके बाद जो रूल करने आए, उनके बाद जो उनके बच्चे बैठे गद्दी पर, तो उनके लिए एक तरीके से बहुत बड़ा रूल उनके सामने रखा, उन्होंने इनहेरिटेंस में दिया गया। क्लियर? एक तरीके से पुश्तैनी जायदाद के रूप में उन लोगों ने उनको दिया। सक्सीडेड मीन कमिंग रूलर्स। सक्सीडिंग रूलर्स मीन्स जो मुगल रूलर्स को एक के बाद एक टेक ऑफ करते हैं ना, जैसे एक रूलर की डेथ हो गई, उसके बाद उसके सन के उस पे थ्रोन पे बैठेगा, उस सन के बाद उसका ग्रैंडसन उस पे थ्रोन पे बैठेगा। आई होप इट इज क्लियर, दैट इज द सक्सीडिंग रूलर्स। एक के बाद एक गद्दी मिलती जाती है राजकुमारों को उनके फादर की डेथ के बाद। तो एक तरीके से दे हैड लेफ्ट अ पॉलिटिकल लीगेसी इनहेरिटेंस टू देयर कमिंग रूलर्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, एंड दैट कुड नॉट बी इग्नोर्ड। इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। ये फैक्ट है कि उन्होंने अपने सक्सीडिंग रूलर्स के लिए बहुत बड़ा किंगडम रख छोड़ा था। Today, the Prime Minister of India addresses the nation on Independence Day from the ramparts of Red Fort in Delhi. अब जो प्राइम मिनिस्टर है, आज हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर कहाँ से लोगों को एड्रेस करते हैं? रेड फोर्ट से, है ना? इंडिपेंडेंस डे पे, इंडिपेंडेंस डे Yes, 15th of August रिसेंटली हैड गॉन। वहाँ प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच दी थी रेड फोर्ट से, that is in New Delhi. Yes, ma'am. Clear? And the residence of, it was the residence of what? Mughal emperors. वो कभी रेड फोर्ट मुगल एम्परर्स का रेजिडेंस रहा करता था पहले, मींस मुगल रूलर्स यहाँ पर रहते थे रेड फोर्ट में। आई होप द पैराग्राफ इज क्लियर नाउ। Rampart. Now what is a rampart? Rampart, a defensive wall city. Rampart means a defensive walled city. डिफेंसिव वॉल्ड सिटी कौन सी थी? दिल्ली, है ना? वहां पर रेड फोर्ट बना हुआ था, और रेड फोर्ट किसका रेजिडेंस थे? मुगल एम्परर्स का। Now who were the Mughals? Now the question arises, we are talking about Mughals. Now who actually the Mughals are? We will read in this paragraph. The Mughals were descendant of two great lineages. The Mughal were descendant, किसके descendant थे? Two great lineages. Lineages means ancestors of rulers. Clear? From their mother's side, they were descendant of चंगेज खान। उनकी मम्मी की साइड में वो किसको बिलोंग करते थे? मम्मी की साइड से दो मेन एंसेस्ट्रल लाइनेज को वो बिलोंग करते हैं मुगल्स, ठीक है ना? मम्मी के साइड से वो किसको बिलोंग करते थे? चंगेज खान को। मम्मी की साइड से किसको बिलोंग करते थे वो? चंगेज खान को, जिसकी डेथ हो गई थी 1227 में। Who was a Mongol ruler? Who was Genghis Khan? Genghis Khan was a Mongol ruler who ruled parts of China and Central Asia. This was the intro of Genghis Khan. Who was Genghis Khan? Clear? Now from their father's side, अब इनके पापा की साइड मुगल्स रूलर्स किसको बिलोंग करते थे? From the father's side, they were successors of Taimur. They were successors of तैमूर। अब पापा की साइड से वो किसको बिलोंग करते थे? तैमूर को। उनके फोर फादर कौन थे मुगल्स के? तैमूर। क्लियर? एंड तैमूर डाइड इन 1404। Who was Taimur now? The ruler of Iran. Taimur was the ruler of Iran, Iraq and modern day Turkey. आज जो टर्की है वो भी उस वक्त किसके अंडर में थी? तैमूर के अंडर में थी। क्लियर? Mughals who were the Mughals were descendant of which two great lineages?
कौन से दो एंसिस्टर्स थे मुगल्स के? चंगेज खान और तैमूर। मम्मी की साइड से चंगेज खान को बिलोंग करते थे, फादर की साइड से तैमूर को बिलोंग करते थे। क्लियर? However, the Mughals did not like to be called मुगल और मंगोल, बट मुगल्स जो थे वो अपने आप को मुगल कहलाना नहीं पसंद करते थे, क्योंकि मुगल जो वर्ड है वो किससे ड्राइव किया गया है? एक तरीके से मंगोल वर्ड से, और वो नहीं चाहते कि वो अपनी मम्मी के डिसेंडेंट कहा जाए, उनको उनकी मम्मी चंगेज खान के डिसेंडेंट कहा जाए। Why? Because the reason was there. Now this was because Genghis Khan's memory was associated with massacre of innumerable people. वो अपने आप को, मुगल्स जो थे वो अपने आप को मंगोल के डिसेंडेंट्स नहीं कहा जाना पसंद करते थे, बिकॉज चंगेज खान मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद मैसेकेर. मैसेकेर मीन्स killing in large number. Write down, killing in large number. Written, मैम 1 मिनट. killing of people in large number. Killing of people in large number. तो मुगल्स जो है वो अपनी मम्मी की साइड से, जैसे जो मंगोल को बिलोंग करते थे, वो ऐसा कहलाना पसंद नहीं करते थे, अपने आप को मुगल नहीं कहलाना पसंद करते थे, नॉट बिलोंगिंग टू मंगोल्स. वाई? बिकॉज द चंगेज खान मेमोरी इज एसोसिएटेड विद द मैसेकर ऑफ इन्यूमरेबल पीपल. बहुत से लोगों की चंगेज खान ने जान ली थी, इसलिए वो इस घटना के चक्कर में वो अपने आप को मुगल नहीं मानते थे, वो मंगोल से डिसेंडेंट नहीं मानते थे. क्लियर? हम उनको मंगोल्स ने मारा था. उनको मंगोल्स ने नहीं मारा था, ये चंगेज खान ने बहुत सारे लोगों को मारा था. किल इन मैसेकर. मैसेकर मीन किल द पीपल इन लार्ज नंबर. मीन्स हमेशा मंगोल, आपने पिछले प्रीवियस लेसन में पढ़ा होगा ना कि मंगोल इन्वेजन वाज देयर एवरी टाइम. दे यूज्ड टू इन्वेड, प्लंडर, वो लूटपाट करते थे. देयर वर्क प्लंडरिंग. हाँ, वो अपना एरिया स्प्रेड करने के लिए लोगों को मारते थे, किल करते थे, स्प्रेड करते थे, उनको लूटपाट करते थे. दैट वाज द मेन एम ऑफ द मंगोल्स. तो मंगोल्स, तो इसीलिए वो अपने आप को मंगोल्स के एंसेस्टर्स कहलाना पसंद नहीं करते थे. कौन पसंद नहीं करते थे? मुगल्स. क्लियर? पहले तो ये भी लिखा था कि मैं मंगोल्स ने दिल्ली पे हमला किया था. हाँ, मंगोल्स ने भी दिल्ली पर हमला किया था, अटैक्ड दिल्ली, एंड 2 times ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी. तो बहुत 2 बार अलाउद्दीन खिलजी के रेन में, फिर मोहम्मद तुगलक के रेंज में भी, स्टार्टिंग ऑफ द मोहम्मद तुगलक रेन में भी, हमने पढ़ा था लास्ट प्रीवियस लेसन में. सो ये दिस वाज द मेन रीजन दैट दे वर इन्वॉल्व्ड इन killing of large number of people. That is why Mughals did not want this, they themselves to be called from Mongol dynasty. Clear? It was also linked with Uzbeks, their Mongol competitors. और उनको उज़्बेक से भी, ये जो मंगोल से, वो किससे लिंक थे? उज़्बेक से भी. Now who were Uzbeks? Uzbeks were the Mongol competitors. उज़्बेक्स कौन थे? मंगोल के ऑपोजिट में खड़े होते थे, मंगोल के कॉम्पिटिटर्स थे. क्लियर? सो ये आपस में लड़ाई होती रहती थी, बहुत सारे लोग बीच में उनकी डेथ हो जाती थी अननेसेसरली. दैट इज व्हाई ड्यू टू दिस मेमोरी ऑफ मैसेकर द मुगल्स डिड नॉट like to be mentioned in the Mongol category. On the other hand, Mughals were proud of the Timurid ancestry. मगर उसके जस्ट ऑपोजिट में देखते हैं हम, तो मुगल्स जो थे वो प्राउड फील करते थे अपने आप को फादर के एंसेस्टर्स, टेमुरिड एंसेस्टर्स को अपना फादर्स मानते हुए. व्हाई? बिकॉज नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398. बिकॉज वो जो टेमुरिड थे उन्होंने 1398 में दिल्ली पर अपना कंट्रोल कर लिया था. मैम टाइमरिड मतलब? हाँ, टेमुरिड, टाइमरिड, टेमुरिड ये
Tamurid means Yes, ma'am. Belonging to Tamur from the father side. Just now we have seen. Yes, ma'am. On the father side they belong to Temur. Temur नाम Temur. है और इनकी जो डायनेस्टी, इनका जो किंगडम है उसको टैमुरिड किंगडम कहते हैं. क्लियर? Okay, ma'am. टैमुरिड डायनेस्टी. तो वो अपने आप को टैमुरिड मानना ज्यादा पसंद करते थे बिकॉज इट वाज एसोसिएटेड विद द गुड मेमोरी दैट दे फेल्ट प्राउड दैट देयर एंसेस्टर्स ऑफ द फादर्स साइड दे हैड कैप्चर्ड दिल्ली और दिल्ली पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया था उन्होंने 1398 पे. नाउ दे सेलिब्रेटेड देयर जेनोलॉजी, दे सेलिब्रेटेड देयर genealogy pictorially, each ruler getting a picture image of Taimur and himself. अब ये सेलिब्रेट कैसे करते थे? हर मुगल रूलर जो भी था, मुगल को बिलोंग करता था, वो अपनी पिक्चर तैमूर के साथ बनाते थे. मीन्स तैमूर के साथ पिक्चर means we can say ask the artist to carve the picture with the Taimur dynasty. Clear? Rather than to Mongol dynasty. अपने आप को वो तैमूर डायनेस्टी को दिखाते हुए पिक्चर शो करते थे, मंगोल डायनेस्टी को नहीं. क्लियर? They celebrated their genealogy. Genealogy means family line of. मैम हमने फिगर 2 नहीं पढ़ा. क्या नहीं पढ़ा? मैम फिगर 2. Figure 2 you can't read. Figure से okay. Miniature painting dated 1702 to 1712. ये एक मिनिएचर पेंटिंग दिया है यहाँ पर of Taimur. Taimur, his descendants and the Mughal emperors. Taimur बैठे हैं, उसके डिसेंडेंट बैठे हैं and the Mughal emperors. Now Taimur is in the center. Taimur कहाँ पर है? In the center. And on his right, अब ऐसे बैठे हैं तो on his right, which is the right? This side is the right. Right is his son Miran Shah. Yes, ma'am. राइट में कौन बैठे हैं इनके? मिरान शाह, द फर्स्ट मुगल एम्परर, बाबर्स ग्रेट एंड ग्रेट ग्रैंडफादर. बाबर के ग्रेट एंड ग्रेट ग्रैंडफादर बैठे हैं. एंड देन कौन बैठे हैं? अबू साइद, बाबर्स ग्रेट ग्रेटफादर. ये बाबर के ग्रेट ग्रैंडफादर है, ये ग्रैंडफादर है. ये देखिए ये नाम दिए गए हैं इनके, एक के बाद एक कैसे बैठे हैं ये. अबू साइद ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि परदादा. परदादा, परदादा, दादा. ठीक है ना? बाबर्स ग्रेट ग्रैंडफादर. फिर टू द लेफ्ट कौन बैठे हैं? तैमूर आर सुल्तान महमूद मिर्जा, बाबर्स ग्रेट ग्रैंडफादर. बाबर्स का ग्रेट ग्रैंडफादर यहाँ पर बैठे हैं. एंड उमेर शेख, बाबर्स फादर, बाबर के फादर बैठे हैं उमेर शेख. देन मुगल एम्परर बाबर खुद बैठे हैं. Then Akbar and then Shahjahan are the third, fourth and fifth individuals on the Taimur's right and on his left. ठीक है, राइट और लेफ्ट में ये इनकी नंबर बताया गया है, कौन से नंबर पे कौन बैठा है करके. सो इन द सेम ऑर्डर आर हुमायूं, जहांगीर एंड औरंगजेब. सो राइट एंड ऑन द लेफ्ट में सेम ऑर्डर में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब लास्ट में बैठे. क्लियर? सो ये इनकी यहाँ पर बताया. अकॉर्डिंगली इन द पिक्चर इट इज शोन कि तैमूर के साथ वो फोटो, अपने आप को फोटो के बीच में दिखाना ज्यादा पसंद करते थे ये मुगल रूलर्स. क्लियर? अब इस पेंटिंग से समझ में आ गया? yes, वो अपने आप को तैमूर से रिलेटेड ज्यादा पसंद करते थे शो करना, रादर दैट एज कंपेयर टू द मंगोल्स. Now the Mughal military campaigns. Babur was the first Mughal emperor. Underline this. Who was the first Mughal emperor? Babur. And his reign was, his ruling period was 1526 to 1530, and succeeded to the throne of Fergana in 1494. 1494 में इन्होंने फरगाना के राजगद्दी हासिल कर ली. When he was only 12 years old, when Babur was only 12 years old, तभी उनको फरगाना की राजगद्दी मिल गई. He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group. उसको फोर्स किया गया
थ्रोन को छोड़ने पर मजबूर किया गया बाबर को, जस्ट बिकॉज ऑफ द अटैक ऑफ मंगोल ग्रुप, द उज़्बेक्स। दूसरा एक और मंगोल ग्रुप था उज़्बेक्स, उनके अटैक की वजह से बाबर को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। आफ्टर years of wandering he seized Kabul in 1504, और बहुत समय तक वो इधर उधर घूमते रहे, and finally he seized means he captured Kabul in 1504. फाइनली 1504 में वापस उन्होंने काबुल पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया, एंड इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली। वापस से वो क्या हो गए, पावर में आने लग गए। उन्होंने 1526 में सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को डिफीट कर लिया। एट दैट टाइम इब्राहिम लोदी वाज द रूलर ऑफ दिल्ली, and he was defeated by whom? Ibrahim Lodi was defeated by Babur. इब्राहिम लोदी। Ibrahim Lodi was defeated by whom? मैम बाबर। Babur. ठीक है, Babur. इन बाबर। 1526 में डिफीट किया गया एट पानीपत एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा, और उसके बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पे अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया। Now we'll continue in our next class with the next paragraph. Till then, read till here and try to understand. If any doubt, you can ask me in the next class. That's all for today. Thank you. Okay,